Good morning, children. Today we will learn about emulsion. As we know that emulsion is liquid-liquid colloid dispersion in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid. The process of making emulsion is called emulsification. In this process, both the immiscible liquids are taken in same container and then it is vigorously shaken or stirred by using mechanical or electrical stirrer. When both the liquids are shaken vigorously, then one liquid, generally which is smaller in amount, dispersed into another liquid. So one liquid acts as dispersed phase and another acts as dispersion medium. But when we keep this emulsion for some time, then the emulsion is broken down and both the liquids get separated and form two different layers. In order to stabilize this process of breaking the emulsion into two constituent liquids is called demulsification. Demulsification is the process of breaking the emulsion into its constituent liquids. Now, if we want to stabilize the emulsion, then another substance is added during the preparation of emulsion, and this substance is called as emulsifying reagent. This emulsifying reagent stabilizes the emulsion, and now the dispersed phase cannot stick together to make the separate layer. How the emulsifying reagent work? What is the function of emulsifying reagent? The example of emulsifying reagent is soap and detergent. These are most commonly used emulsifiers. As we know, the shape of the soap molecule is represented as RCONA. As we know that this RCONA is the representation of the soap molecules like this. This is also the sodium salt of long chain fatty acid, where alkyl group can be C17H35 as in sodium stearate. Now the soap molecule consists of two parts. When it is put in water, then soap molecule dissociates to form a giant or larger anion and sodium ion pass in the medium. Now this soap molecule, it contains this anion part contains two parts. One is its tail. You see, this is the tail. This tail is made of carbon atoms. It is the part of alkyl group and it is hydrophobic in nature. Means this is water hating part but oil loving part. Another part is this ionic part. This ionic part is called ionic head. It is hydrophilic in nature. It is water attracting part. Now, when suppose we have the emulsion of oil in water. So when soap is added, then you see that the soap molecules get radially arranged around the dispersed droplets of oil. और जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टेल पार्ट है वो ऑयल में डिजॉल्व है और जो इनका आयनिक हेड पार्ट है वो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं जो कोलॉइड रेंज में डिस्पर्स हुए हैं उनके ऊपर के तरफ है, उनके सरफेस पर आयनिक पार्ट है. तो इस तरह से सारे जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं सबका सरफेस क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से क्या होगा कि जो एक डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट है, जो एक ऑयल ड्रॉपलेट है, वो दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट को रिपेल करता रहेगा. क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स जो
ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड हुए हैं उनके चारों तरफ एक शीथ बना दे रहा है, एक कवर बना दे रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है बाहर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से स्टिक करके सेपरेट लेयर नहीं बनाएंगे और इस तरह से ये इमल्सन स्टेबलाइज हो जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट in stabilizing the emulsion. Now, types of emulsions. Depending upon the proportion of the two liquids taken, emulsion can be oil in water type. It is abbreviated as O/W. Example is as milk and vanishing cream. Another is water in oil type, abbreviated as W/O. That is, the example of this type of emulsion is cod liver oil, cold cream and butter. In this case, you see W/O, W, that is water is dispersed phase. So it means water is present in a smaller amount and oil is present in larger amount because here oil is medium. अब बात ये आती है कि हमें जो emulsion दिया गया है वो O/W या W/O किस टाइप का है, ये कैसे पता चलेगा. तो बच्चों इसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू नो व्हाट टाइप ऑफ इमल्सन इज गिवन, बी यूज द टेस्ट. यहाँ पर दो टेस्ट जनरली यूज होते हैं. एक है जिसमें हम फैट सॉल्युबल डाई का यूज करते हैं और दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट. फैट सॉल्युबल डाई में क्या होता है कि जो हमें इमल्सन दिया गया है उसमें हम फैट सॉल्युबल डाई को ऐड करके शेक करते हैं. जैसे ही फैट सॉल्युबल डाई ऐड किया जाएगा तो हमें दो ऑब्जर्वेशंस मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इमल्सन. एक तो ये हो सकता है कि केवल ड्रॉपलेट्स हमें कलर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि केवल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कलर्ड हैं. कि ये ड्रॉपलेट्स दीज आर ओनली कलर्ड. तो अगर ऐसा हो रहा है कि केवल ड्रॉपलेट्स कलर्ड हैं तो इस तरह के इमल्सन को जहां पर ड्रॉपलेट्स केवल कलर्ड हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रॉपलेट्स किसकी बनी हुई हैं, फैट या ऑयल की बनी हुई हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल डाई इसमें डिजॉल्व हो गया है और ये कलर को एक्वायर कर लिए हैं. तो यहाँ पर फैट डिस्पर्स्ड फेज हुआ तो इसका मतलब ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और जो यहाँ पर मीडियम है ये वाटर का बना हुआ है. तो ये जो हमारा इमल्सन होगा ये क्या होगा, ऑयल इन वाटर टाइप. लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो कि अगर वाटर डिस्पर्स्ड फेस हो, ऑयल डिस्पर्जन मीडियम हो, तो उस समय क्या होगा कि पूरा बैकग्राउंड ही कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है और फैट सॉल्युबल डाई जब ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा तो पूरा बैकग्राउंड जो है उसका क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. तो इस तरह से हम टेस्ट का यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फैट सॉल्युबल डाई टेस्ट to detect whether the emulsion given is oil in water type or water in oil type. Now we take the applications of emulsion. First application is in froth flotation process. This is used for concentration of sulfide ore. In this case, pine oil is added in water in which the crushed sulfide ore is taken and the compressed air is sent in. तो आप जानते हैं कि जो पाइन ऑयल और वाटर का इमल्सन है, दिस हेल्प्स इन स्टिकिंग द सल्फाइड ओर टू द फ्रोथ एंड देन इट इज कैरिड टू द सरफेस एंड इज सेपरेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड. डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन. तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही फैट और ऑयल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहाँ का मीडियम एल्केलाइन होता है ड्यू टू बाइल जूस देयर. तो एल्केलाइन होने के वजह से जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस पर वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट इज इन फूड. सेवरल फूड प्रिपरेशंस आर इन द कोलाइडल इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन लाइक मिल्क उसमें मेन है, बटर है, चीज़ है. ये जो मेडिसिन्स हैं उसमें
मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड इन इमल्सन फॉर्म बिकॉज जब वो इमल्सन के फॉर्म में आते हैं तब उनका जो रेट ऑफ एक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। इन रोड सरफेसिंग जैसे चारकोल वगैरह है वो मेल्ट करके रोड पर डाला जाता है, लेकिन इसके बजाय हमें क्या करना है कि अगर हम चारकोल का इमल्सन यूज़ करें तो होगा क्या कि सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाएगा और जो चारकोल है वो जो स्टोन है उसको बाइंड कर देगा। इस तरह से रोड सरफेसिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं विदाउट हीटिंग। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, हम जानते हैं कि जो सोप का क्लिनसिंग एक्शन है, जब सोप वाटर में डाला जाता है तो ये मिसल्स फॉर्मेशन करता है और जो हमारे क्लोथ्स में ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है तो सोप मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, जिसका टेल पार्ट ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, आयनिक हेड पार्ट बाहर वाटर में रहता है। और जब हम इसको एजिटेट करते हैं तो जो सोप मॉलिक्यूल्स है दैट कम्स आउट अलोंग विद द ऑयल और ग्रीस, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। So this is for today's topic. Thank you for watching the video. Thank you very much.